Good morning, students. Welcome you all to our educational YouTube channel, Augmenting Concepts. As you all know very well that we are going through our sessions on human skeletal system, in which we have already done the three sessions. Today's is the fourth one. In Till today, we have already done the overview of the skeletal system, names of the bones which the skeleton is composed of, the hand bones, the foot bones we have done, functions of the skeletal system we have done, and the diagram of the internal structure of bones we have gone through. On the screen you can see the diagram of bone constitution, or we can say how the bone is composed of which elements does the bone is composed of. This diagram we have already seen. We are just looking through the components as blood vessels, the spongy part of the bone, the bone marrow, isn't it? Now, moving forward to the next slide, here you can see the internal structure of bone. On the screen you can see the internal structure of the bone. Here is the outermost covering of the bone. If we set it apart, we can see the blood vessels inside the bone, the round shaped structures inside the bone, and the canal type of space inside the round structures. Fine. So these round coin like cylindrical structures are called osteons. Now what are osteons? We will see into the notes in the next slide. Inside these osteons, if we cut a part of this osteon, we will see oocytes and lamellae, lacuna, canaliculus and Harvesian canal. Inside the spongy part of the bone, we can see blood vessels containing bone marrow. Fine, students. Now moving forward to the notes part. Compact bone tissue. Why it is called compact? Because in a very small space, in a very rigid and hard structural tissue, it is a very hard and compact structure. That is why it is called compact bone tissue. Now this compact bone tissue is composed of osteons. We have just seen the cylindrical round structures. Those structures are called osteons. Fine. Compact bone tissue is composed of osteons and forms the external layers of all bones. Fine. तो इन द डायग्राम यू कैन सी, देखें आप लोग, ये बोन है, बोन के आउटर लेयर को हटाने के बाद अंदर जो ये सिलेंड्रिकल कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या बनाते हैं? ये बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये बोन का कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? एक्सटर्नल लेयर बनाते हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर का एक्सटर्नल लेयर. क्यों? ये देखें आप लोग, फिर से देखें डायग्राम में, ये तो है सेंट्रल पोर्शन इसका, और ये है सेंटर से बाहर की तरफ. दैट इज़ वाई इसको कहा गया है एक्सटर्नल पोर्शन. तो इस सर्कुलर हिस्से को क्या कह रहे हैं? ऑस्टियन. इस पूरे सर्कुलर राउंड सिलेंड्रिकल कितने सारे नज़र आ रहे हैं? देखें 1 2 3 4. इस वाले पोर्शन में, इस वाले छोटे से टुकड़े में आपको कितने सारे ऑस्टियंस नज़र आ रहे हैं. ठीक है. और उसको हार्वेसियन सिस्टम भी कह रहे हैं. ये क्या होता है, इसकी भी कंप्लीट आपको जानकारी मैं आगे दूंगी. तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ऑस्टियंस.
एंड फॉर्म्स द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द ऑल बोन्स। सारी ही बोन्स का जो एक्सटर्नल लेयर है वो ये ऑस्टियोन्स बनाते हैं। स्पंजी बोन टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ट्रेबेक्यूली एंड फॉर्म्स द इनर पार्ट ऑफ द बोन। स्पंजी टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ ट्रेबेक्यूली। ठीक है, ये जो स्पंजी टिश्यू है इसके अंदर ट्रेबेक्यूली होता है। ट्रेबेक्यूली क्या होता है उसका आपको जानकारी हम नेक्स्ट वाले सेशन में उस डायग्राम में देंगे। अगर अभी उस डायग्राम का इंफॉर्मेशन देते तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी हम आपको स्पंजी बोन बताएं और उसके अंदर का डिटेल्स दे दें। तो स्पंजी टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ ट्रेबेक्यूली एंड फॉर्म द इनर पार्ट ऑफ ऑल बोन्स। इतनी बात हो गई। आगे कह रहे हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कंपोज द बोनी टिश्यू। जो बोन है वो 4 तरह के सेल्स से मिलकर बनती है। पहला सेल है ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हड्डी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उससे हम ऑस्टियो ही कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस आपने नाम सुना होगा। जब हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, टूटती ज़्यादा हैं, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी को। तो ऑस्टियो मीन्स हड्डियों से रिलेटेड। ऑस्टियोसाइट एक तरह का सेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके काम है, आगे देखेंगे हम। ऑस्टियोक्लास्ट्स, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट। ये 4 तरह के सेल जो हैं वो बोन के अंदर पाए जाते हैं। इनके क्या क्या काम हैं अलग अलग हम लोग डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं ऑस्टियोन्स क्या होते हैं। आपको मैंने डायग्राम में बताया, ये जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप्स या स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बोन है, ये वाले गोल, इनको कहते हैं ऑस्टियो। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑस्टियो। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोन आर फॉर्मेशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योर बोन। जो भी मैच्योर बोन होगी, जो बोन पूरी तरीके से बन चुकी है, उस बोन के अंदर एक चीज़ जरूर पाई जाएगी जिसे हम कहेंगे ऑस्टियोन। ठीक है, ऑस्टियोन आर फॉर्मेशंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैच्योर बोन। ठीक है, and take shape during the process of bone remodeling or renewal। ऑस्टियोन कब बनते हैं हड्डी के अंदर, जब हड्डी मैच्योर हो जाती है। जो भी हड्डी मैच्योर होगी उसकी पहचान है कि उसके अंदर ऑस्टियोन्स होंगे। ऑस्टियोन्स कब बनते हैं, जब ये शेप लेते हैं बोन रिन्यूइंग या बोन रीमॉडलिंग के प्रोसेस के दौरान। बोन की रीमॉडलिंग क्या होती है अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम। ठीक है, तो ऑस्टियोन कब बनते हैं, जब रीमॉडलिंग से आपको पता ही चल रहा होगा बोन का दोबारा बनना, और इसको क्या कह सकते हैं, रीमॉडलिंग को रीन्यूअल। जब बोन नई बनती है उस दौरान ऑस्टियोन बनते हैं। अब इन ऑस्टियोन के बीच की स्पेसेस को देखो। The spaces between adjacent ostions are filled with interstitial lamellae। ये देखें आप डायग्राम में, ये देखें डायग्राम कि इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं कि ऑस्टियोन, ये एक ऑस्टियोन, ये दूसरा ऑस्टियोन, इनके ये देखिए ऑस्टियोन के बीच की जो जगह है इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, लैमेली, इंटरस्टिटियल लैमेरी। ऑस्टियोन के बीच की दूरी को क्या कह रहे हैं हम, इंटरस्टिटियल लैमेली। फाइन, तो आप देखें कि इंटरस्टिटियल लैमेली, यहाँ तक आ गया। लेयर्स ऑफ बोन दैट आर ऑफन रेमेनेंट ऑफ हैवेशियन सिस्टम। ठीक है, ये जो इंटरस्टिटियल लैमेली है ये प्रोसेस के दौरान बन जाती हैं खुद ही। इसका कैसे फॉर्मेशन होता है वो स्टेप वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले हमने ये देख रहे हैं कि ऑस्टियोन्स क्या होते हैं, उनके बीच में क्या क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इंटरस्टिटियल लैमेली। क्या होता है, इंटरस्टिटियल लैमेली लाइज इन द स्पेस बिटवीन ऑस्टियोन, जो कि आपने अभी देखा,
विच आर द रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स का होता है बचा हुआ जो चीज़ है उसको रेमिनेंट कहते हैं, रेमिनेंट्स ऑफ ऑस्टियन। ऑस्टियन का रेमिनेंट क्या होता है? इंटस्ट्रियल लैमेली दैट वर पार्शियली रीअब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बोन रीमॉडलिंग। ठीक है, बोन रिमॉडलिंग के दौरान ये बन जाते हैं। अब बोन रिमॉडलिंग क्या होती है देखें, बोन रीमॉडलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अब आप जानते ही हैं कि जब भी कोई हड्डी टूट जाती है तो दोबारा वो जुड़ती कैसे है, प्लस कोई न्यू बोन किस तरीके से बोन्स नई बनी रहती हैं, तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि बोन रीमॉडलिंग क्या होती है। तो बोन रीमॉडलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पूरे ज़िंदगी ही धीरे धीरे बोन्स जो है वो अपना जैसे बनती रहती, जैसे एक हड्डी है, अब वो अपना कैल्शियम भी छोड़ रही है शरीर के अंदर, जो ज़रूरी मिनरल है वो भी दे रही है, तो अब खुद तो खाली हो जाएगी, तो दोबारा इसमें मजबूती लाने के लिए जो हम खाना खाते हैं उससे इसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो दोबारा रिन्यू हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी ये काम चलता ही रहता है धीरे धीरे, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं बोन रीमॉडलिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इन इट मैच्योर बोन टिश्यू इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द स्केलेटन। जो बोन टिश्यू मैच्योर हो गई है, बिल्कुल बड़ी हो गई है, ख़त्म हो गया उसका काम, उसे रिमूव कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है स्केलेटन में से, हड्डियों के ढांचे में से, एंड आर रिप्लेस्ड विद न्यू बोन टिश्यू। पुरानी बोन टिश्यू जो है मैच्योर, उसे हटा लिया जाता है रीमॉडलिंग प्रोसेस के दौरान हड्डी में से, स्केलेटन में से, और उसकी जगह नया छोटा जो नया बोन टिश्यू है वो डाल दिया जाता है, जिससे कि अपने आप ही क्या होगा, हड्डी रिन्यू हो जाएगी। बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस ऑल्सो कंट्रोल्स द रीशेपिंग ऑफ द बोन। जो बोन रिमॉडलिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, वो हड्डी के शेप का भी ध्यान रखते हुए प्रोसेस होता है। बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस ऑल्सो कंट्रोल्स रीशेपिंग ऑफ द बोन। ठीक है, पुराना वाला जो मैच्योर बोन का टिश्यू था उसे जब आप हटा रहे हैं और उसकी जगह नया लगा रहे हैं तो उसके में ये भी ध्यान रखा जाता है कि शेप मेंटेन रहे। दिस प्रोसेस रीशेप्स एंड रीप्लेसेस द बोन। जो रीमॉडलिंग का प्रोसेस है उसका क्या काम है, बेसिकली दोबारा नया शेप देना और जो पुरानी बोन है उसको नया टिश्यू से रिप्लेस कर देना। कब होता है ये काम? इन केसेस ऑफ इंजरीज सच एज फ्रैक्चर्स। कहीं अगर फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो दोबारा उस पुरानी टिश्यू को हटा के नया टिश्यू लगाना। इसीलिए फ्रैक्चर ठीक होने में इतना लंबा समय लगता है, और फ्रैक्चर का जो डैमेज है, पेन है, उससे निकलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो और जब अगर एज ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर यंग एज हो तो जल्दी से रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको शरीर में पूरा सप्लाई मिलता है। अच्छा, दिस प्रोसेस रीशेप्स एंड रिप्लेसेस द बोन इन केस ऑफ इंजरीज सच एज फ्रैक्चर्स एज वेल एज, ना केवल फ्रैक्चर के दौरान, एज वेल एज माइक्रो डैमेजेस अकरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी। जो नॉर्मल एक्टिविटी, कहीं ज़ोर से टक्कर लग गई तो नीला पड़ गया, या इस तरह की कोई और इंजरी, खरोंच लग गई, या फिर लिगामेंट टूट गया, या फिर इस तरह का कोई भी छोटा मोटा माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा इंजरी अगर कोई हो जाती है नॉर्मल डेली लाइफ में, तो उसकी रिकवरी का काम भी बोन रीमॉडलिंग के थ्रू हो जाता है। और बोन रिमॉडलिंग कहाँ पर होती है? लैमेली जो है इसका रेमिनेंट है, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही ये सब काम होते रहते हैं। और इसके साथ साथ हमने आपको पहले वाले वीडियोस में ये भी बता रखा है सेशंस में कि बोन बनती कैसे है, प्रोटीन से, कैल्शियम से, ये आपको बताया है मैंने। तो इसीलिए बोन्स की अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए खाना पीना कंप्लीट, और उसके साथ में जो ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं उनको भी लिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हमने देखा किस तरह से बोन का डायग्राम रहता है।
उसके बाद में इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें से हमने अभी एक या दो ही कवर किए हैं। आगे आने वाले सेशंस में आपको ये जितने तरह के दिख रहे हैं सेल्स और इंटरनल स्ट्रक्चर, हम सारे कवर करेंगे। और हमने देखा कि बोन रीमॉडलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कितने तरह के बोन सेल्स होते हैं, और आगे जाके हम इसके काम भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझे बताएं। अगर आपके डाउट्स और क्वेश्चंस हैं कोई, तो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट काइंड्स ऑफ वीडियोस ऑन विच सब्जेक्ट डू यू वांट, प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कौन से सब्जेक्ट के क्या आपको वीडियोस चाहिए, सेशंस चाहिए, काइंडली लेट मी नो। थैंक यू सो मच।